today let's start with chapter number 5, major domains of the earth. In this chapter we will study about the major domains. We have lithosphere, hydrosphere, atmosphere, and what they all makes. These all makes biosphere. This is your lithosphere, hydrosphere, एटमॉस्फेयर. और ये बीच में क्या बनता है आपका, एक ये जो इंट्रैक्शन है इसके बीच में ये होता है आपका बायोस्फेयर. राइट, दिस इज बायोस्फेयर, दिस इज योर लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर. Now in this chapter I will tell you about the continent and what is hydrosphere, what is atmosphere, lithosphere and biosphere. Now look at the illustration given below. ये illustration दिया है, आप इसको देखेंगे. Now जो हमारा अर्थ है वो एक यूनिक प्लैनेट है. Why it is unique? Because it is the only planet where people live, where life is possible, because there is a air and water available. So now we know that the reason why the life exists on the planet Earth. It is the complex character of the Earth and it is surrounding atmosphere that have combined to provide the condition of life. देखो क्या है, atmosphere है, मतलब air की presence है, so there is life possible. So the surface of the Earth is occupied by land and water. The ocean seas cover 71% of the Earth. देखो हमारी जो अर्थ है जो 71% है वो वाटर से कवर्ड है और बाकी बचा हुआ क्या है आपका अर्थ है. और आपके 30% जो लैंड है उस पर 90% पॉपुलेशन रिजाइड करती है. राइट, सो द अर्थ, द डोमेन्स ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड क्रस्ट. देखो जो सॉलिड क्रस्ट है वो आपका क्या है, लिथोस्फेयर. वाटर आपका हाइड्रोस्फेयर है और जो एयर सराउंडिंग द अर्थ है वो क्या है, एटमॉस्फेयर. सो द एटमॉस्फेयर वेयर दीज थ्री रीम्स मीट, जो एक नैरो जोन बनाते हैं उसको क्या बोला जाता है, बायोस्फेयर. Now first is lithosphere. Word lithos एक ग्रीक लैंग्वेज है जिसका मतलब है लैंड और ऑफ रॉक. The solid crust of the earth is made up of rock. At most places rocks are covered with small particles of rock rubbed from them, sand and clay, which together form soil. A soil contains nutrients, elements which sustain life of organism. देखो जो लिथोस्फेयर एक सॉलिड क्रस्ट है, like it is made of sand and clay, sand और clay से बना है, and it is the only part which together forms a soil. और soil क्या contain करता है, organic life of organism, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपके nutrients present है जो life को sustain करते हैं. There are two apparent division of the earth's surface. We have continent and land mass. Continent and ocean. Continent आपका land mass हो गया और oceans आपके क्या हो गए, water body हो गए. Right, we have 7 continents and 5 oceans. We have Asia, Africa, North America, South America, Europe, Australia और Antarctica. Now, and we have 5 oceans. We have Indian Ocean, Pacific Ocean, Southern Ocean, Arctic Ocean और Atlantic Ocean. Right, सबसे बड़ा आपका Pacific है. Now the rocks from the foundation of the continent, they support ocean also. Sea एक part है आपका ओशन का ही, दैट इज मोस्टली इनक्लोज बाय लैंड. ऑल द ओशन एंड सीज आर कनेक्टेड विद अनवन. देखो जितने भी सीज है, ओशन है, ये आपके एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. द लेवल ऑफ sea and ocean water remains same everywhere. All elevation of land and depth of oceans are measured. देखो आप हर जगह जाएंगे तो सी और जो ओशंस के लेवल है वो सेम रहती है, जो डेप्थ होती है वो भी सेम रहती है. माउंट एवरेस्ट जो आप देखते हैं जो सबसे हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, मारियाना ट्रेंच सबसे डीपेस्ट क्या है, ट्रेंच है पैसिफिक ओशन का. ये आपको याद रखना है. सबसे हाईएस्ट पीक क्या है आपकी, माउंट एवरेस्ट, और मारियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशन की डीपेस्ट ट्रेंच है. राइट, हाईएस्ट पीक आप जब कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा. नाउ लेट्स स्टडी द कॉन्टिनेंट्स. नाउ वी हैव 7 कॉन्टिनेंट. दिस इज योर एशिया, लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा है. ठीक है, यूरोप एशिया से कौन से उरल माउंटेन्स होते हैं, उरल माउंटेन्स उनसे सेपरेटेड है. देन वी हैव अफ्रीका,
दिस इज अफ्रीका, दिस इज यूरोप. देन वी हैव साउथ में है साउथ अमेरिका. देन वी हैव नॉर्थ अमेरिका, इट इज इन द नॉर्थ ऑफ अमेरिका, राइट. दिस इज नॉर्थ अमेरिका. ऑस्ट्रेलिया जिसे हम ओशनिया भी कहते हैं, एंड दिस इज एंटार्क्टिका. ये वाला जो आपका कॉन्टिनेंट है ये थ्रू आउट द ईयर स्नो कवर्ड होता है, राइट. देन वी हैव ओशन, दिस इज योर पैसिफिक ओशन, राइट. दिस इज एश शेप. ये कौन सा ओशन होता है? अटलांटिक ओशन. दिस इज योर आर्टिक ओशन, दिस इज इंडियन ओशन जो लाई करता है, और दिस इज योर सदर्न ओशन, राइट. दीज आर द डिफरेंट ओशन. नाउ लेट्स सी द कॉन्टिनेंट फर्स्ट. द ग्लोब इज डिवाइडेड इनटू 7 मेजर कॉन्टिनेंट सेपरेटेड बाय ओशन. कौन कौन से? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, जो मैंने आपको बताया है. ये क्या है? आपके 7 कॉन्टिनेंट हैं. नाउ फर्स्ट इज एशिया. एशिया जो है वो सेपरेटेड है यूरोप से, मैंने आपको बताया था, उरल माउंटेन से ऑन द वेस्ट. ये 75 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड टू 10 डिग्री साउथ इसका एक्सटेंट है. ये कहाँ लाई करता है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में. और 163 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड को ऑक्यूपाई करता है, मतलब हाफ ऑफ द वे अराउंड द ग्लोब. ये एशिया जो है ये 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया को कवर करता है. एंड द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इसी कॉन्टिनेंट से पास करता है. यूरोप और एशिया को जब हम मिला देते हैं तो क्या बनता है? यूरेशिया. मेन कंट्री जो एशिया की है वो है आपकी रशिया, चाइना, कोरिया, जापान एंड इंडिया. एशिया इज सराउंडेड बाय ओशन ऑन 3 साइड. आर्टिक ओशन नॉर्थ में है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है. आर्टिक ओशन आपका नॉर्थ में है, साउथ में आपका इंडियन ओशन है, और आपका ईस्ट में पैसिफिक ओशन है, और वेस्ट में आपका अटलांटिक ओशन है, ठीक है. ये चारों तरफ पानी से घिरा है. एंड द चीफ कंट्री ऑफ यूरोप, यूरोप की जो चीफ कंट्री वो यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली है. और ग्रीनविच मेरिडियन जो है वो भी आपकी इसी कॉन्टिनेंट से पास करती है. देन वी हैव अफ्रीका जो सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है आफ्टर एशिया. इट इज बाउंडेड बाय all side by oceans and seas. We have Atlantic Ocean, Pacific Ocean, Indian Ocean and Strait of Gibraltar or Mediterranean Sea. ठीक है. Then the last two separated from Europe and Suez Canal. It from Asia and the Suez Canal is built on. जो Suez Canal है वो आपका किस पे बना है? Isthmus of Suez पे. What is strait? एक तो आपकी स्ट्रेट होती है, एक isthmus होती है. स्ट्रेट की बात करें, नैरो पैसेज ऑफ वाटर होता है जो 2 लार्ज वाटर बॉडी को, मतलब सी और ओशन को कनेक्ट करता है, वो तो स्ट्रेट होता है. अगर हम बात करें स्टमस, ये एक नैरो स्ट्रिप होती है जो लैंड को टू लैंड मास से ज्वाइन करती है, कॉन्टिनेंट से कॉन्टिनेंट को ज्वाइन करती है, तो वो क्या होती है? स्टमस. अफ्रीका एक ऐसी कंट्री है, इट इज द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास. तीनों चीजें पास करती है, इक्वेटर भी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी. The equator 0 degree latitude run almost through the middle of the continent. The world longest river, वर्ल्ड की जो सबसे लंबी रिवर है नाइल रिवर, वो आपकी अफ्रीका से ही निकलती है. It runs north through Egypt and empties into Mediterranean Sea. Sahara Desert world largest hot desert. Sahara Desert जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है वो भी यहीं लाई करता है. और the Sahara in the North Africa stretches from Atlantic Ocean to Red Sea. और लार्जेस्ट लेक जो विक्टोरिया लेक है वो भी यहीं लाई करता है, और ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है. इसको हम यूरोपियन ने इस कॉन्टिनेंट का नाम डार्क कॉन्टिनेंट रखा था. देन वी हैव नॉर्थ अमेरिका, ये थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है. इट इज सराउंडेड बाय 3 ओशन, पैसिफिक, अटलांटिक और आर्टिक. ये आपका नॉर्थ में लाई करता है कंप्लीटली, और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में. ये साउथ अमेरिका से लिंक है, नॉर्थ अमेरिका में लिंक है किससे? स्टमस ऑफ पनामा. जैसे यहाँ पे आपका मैप है, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ. यहाँ पे लाई करता है आपका स्टमस ऑफ पनामा जो इन दोनों कॉन्टिनेंट को लिंक करता है. ये क्या है आपका? स्टमस ऑफ पनामा. ये दोनों कॉन्टिनेंट को क्या करता है? लिंक करता है. नाउ यूनाइटेड स्टेट और जो कनाडा है सबसे ज़्यादा ऑक्यूपाई करते हैं ऑलमोस्ट होल ऑफ द
नॉर्थ अमेरिका. मैक्सिको इज ऑल्सो इन नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ वेस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स लार्ज पार्ट है. अगर हम बात करेंगे आपके साउथ वेस्ट में तो वो ज़्यादातर क्या है, डेजर्ट एरिया है. Then we have South America, fourth largest continent, surrounded by Atlantic Ocean in the east, Pacific Ocean in the west. ये सर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है, इसलिए इसका नाम है साउथ अमेरिका. ठीक है. 2 ओशन सेपरेट नॉर्थ अमेरिका बट द स्टर्मस ऑफ पनामा जॉइंट्स बोथ द कॉन्टिनेंट. ये 2 ओशन है तो सेपरेट करता है, लेकिन जो स्टर्मस ऑफ पनामा है दोनों कॉन्टिनेंट को ज्वाइन करता है. एक पनामा कनाल है मेड ऑन द स्टर्मस, एंडीज वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, वो रन करती है थ्रू हेयर ओनली. और वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर जिसका नाम है अमेजोन रिवर और सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर वर्ल्ड की, वो आपकी कहाँ लाई करती है, साउथ अमेरिका में. इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो हैं वो हैं आपकी ब्राजील और अर्जेंटीना. देन वी हैव ऑस्ट्रेलिया. इट इज अबाउट 8.51 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. ये स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, ये आपका सदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है. ये सराउंडेड है बाय द ओशन एंड सीज ऑल द साइड. ग्रेट बैरियर रीफ वो आपकी ऑस्ट्रेलिया में ही लाई करती है. देन वी हैव एंटार्क्टिका. इट लाइज विद इन द एंटार्क्टिक सर्कल, परमानेंटली कवर्ड विद थिक. यहाँ पे ये आइस से कवर्ड होती है, स्नो, बर्फ से, क्योंकि ये पोल्स पे है और ये क्या होती है, हमेशा बर्फ से घिरी होती है, इसलिए इसका नाम व्हाइट कॉन्टिनेंट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाइट कॉन्टिनेंट. ठीक है. इट लाइज कम्प्लीटली द सदर्न हेमिस्फेयर. यहाँ पे रिसर्च स्टेशन है, एक तो आपका मैत्री और एक दक्षिण गंगोत्री. यहाँ पे जितने भी हमारी जो रिसर्च स्टेशन है इंडिया के, वो कहाँ है, आपके एंटार्क्टिका में, और दोनों आपको याद रखना है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री. Then we have hydrosphere. Water is in all form. That is ice, water and water vapors on the earth is called hydrosphere. Running water in ocean, rivers and in lakes. Ice in glacier, underground water and water vapor in the atmosphere. सारा क्या है आपका हाइड्रोस्फीयर. जितने भी वाटर वाले पार्ट है, चाहे आपके ग्लेशियर्स हो, रिवर्स हो, ओशंस हो, सब आपके किस में आते हैं, हाइड्रोस्फीयर में आते हैं. बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन ओशन आप देखते हैं कि जो अर्थ है उसको हम क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट कहते हैं. 70% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, और बाकी जो बचा हुआ है वो आपका क्या है, लैंड पार्ट है. एंड 97.3% ऑफ द अर्थ जो वाटर है, 97.3% जो वाटर है वो आपका कहाँ है, ओशन में. ठीक है. एंड इट इज टू सॉल्टी एंड इट इज नॉट फॉर ह्यूमन कंजप्शन. ठीक है. Rest 2.7% वाटर इज फ्रेश वाटर इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट एंड ग्लेशियर. ये आपको लेक्स में, रिवर्स में देखने को मिलता है. इसकी जो परसेंटेज है वो बहुत कम है. और 0.7% जो है वो अवेलेबल है ह्यूमन यूज़ के लिए, जो आपको लेक्स में मिलते हैं, रिवर्स में, ड्रिंकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, इरीगेशन के लिए. Then we have oceans. They are the major part of hydrosphere. We have 5 ocean: Arctic Ocean, Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean and Southern Ocean. Now let's study with Pacific Ocean. सबसे बड़ा, सबसे largest ocean है. It is surrounded by Asia, Australia, North America and South America. ये circular shape का है, largely an open ocean. ये क्या है? It is wide open towards south. It is spread over 1/3 of the earth. ये कहाँ spread है? आपके अर्थ के 1/3 पार्ट पे. It is larger in area than all the continents put together. In the north, it is joined to Arctic Ocean through a narrow. ठीक है. नॉर्थ में एक ये बैरिंग स्ट्रेट जो होती है आपकी, उससे ज्वाइन है इन द साउथ. इट मर्जेस विद अटलांटिक एंड इंडियन ओशन. डीपेस्ट पॉइंट जो है वो मरियाना ट्रेंच है, जो आपका पैसिफिक ओशन में लाई करता है. एंड अ लॉन्ग नैरो बट डीप कट ऑन द ओशन बेड को क्या बोला जाता है, ट्रेंच बोला जाता है. इट इज कॉल्ड ट्रेंच. Then we have Atlantic Ocean. It is bounded by North and South America. वेस्ट में और यूरोप और अफ्रीका इन द ईस्ट. अगर हम बात करें नॉर्थ में तो ये किसके साथ मर्ज करता है, आर्टिक ओशन के साथ, कि सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है वर्ल्ड का. इसकी जो शेप है मैंने अभी आपको दिखाया था, ये एस शेप की है, राइट. ये एक सबसे सैलोवेस्ट अमंग द ओशन है. हाफ ऑफ द पैसिफिक ओशन इन एरिया, और जिसकी कोस्टलाइन है वो हाईली इंटेंडेड. ठीक है. एंड
अटलांटिक ओशन इज द बिजिएस्ट ओशन। ट्रेड शिप्स के लिए अगर हम बात करें तो सबसे बिजिएस्ट ओशन। देन वी हैव इंडियन ओशन, इट इज बाउंड बाय एशिया इन द नॉर्थ, अफ्रीका वेस्ट और ऑस्ट्रेलिया इन द ईस्ट। इसके ट्रायंगुलर शेप है। इट इज द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर कंट्री इंडिया। ये 1/5 ऑफ द टोटल एरिया को ओशन के कवर करता है। एंड द कोस्ट लाइन, इफ वी टॉक अबाउट इट्स कोस्ट लाइन, दैट इज 66,526। ये इसकी कोस्ट लाइन है। और इंडियन ओशन कॉज रेनफॉल इन इंडिया। ये एक तो इंडिया में भी रेनफॉल कॉज करता है और अदर एडजॉइनिंग कंट्रीज में। Then we have Arctic Ocean. Arctic Ocean, it is bounded by northern coast of North America and Eurasia. नॉर्थ में लाई करता है और ये नॉर्थ पोल में होता है। ये फ्रोजन रहता है, ये आइस शीट से कवर्ड रहता है, ठीक है। और एक सेलो वाटर जिसे हम बैरिंग स्ट्रेट कहते हैं, वो क्या करती है, आर्टिक ओशन से कनेक्ट करती है पैसिफिक ओशन को। Then we have atmosphere, a layer of gases surrounding the earth is called atmosphere. It is the force of gravity that holds air close to the surface of the earth. It means that more air is contracted near the surface of the earth. और जो 80% of the gases है, they are held within. और जो 20 किलोमीटर है अर्थ सरफेस की, वो किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। Now we have 5 different layers of the earth. We have troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. ठीक है। Now the thermosphere, the atmosphere provides us with air we breathe, and the ozone layer does not allow most of the harmful part of sun rays like ultraviolet rays. वो allowed नहीं करता है। Now the atmospheric layer also keep the earth warm during night and in winter. Clouds formation, rainfall, जितनी भी एक्टिविटीज है, जितनी भी वेदर एक्टिविटीज है, वो आपकी कहाँ होती है? वो आपके ट्रोपोस्फेयर में होती है, ठीक है। लाइक वी हैव कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, दिस यू हैव टू लर्न। सबसे ज्यादा जो है वो नाइट्रोजन है, दैट इज 78.1%, ऑक्सीजन 20.90%, आर्गन 0.90, और कुछ अदर गैसेस भी हैं जो आपके 0.16 है, राइट। रफली स्पीकिंग, एयर हैज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस, और ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है फॉर ब्रीथिंग, एंड नाइट्रोजन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। Then we have biosphere, the 3 domains, hydrosphere, lithosphere, atmosphere, where they all meet or they interact, उसको क्या बोला जाता है? आपका बायोस्फीयर। एक नैरो जोन है जहाँ पे सारे जो आपके डोमेन्स है वो मीट करते हैं, उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। देयर इंट्रैक्शन मेक्स देम इंटरडिपेंडेंट, द स्लाइस दैट इज यूनिक टू द प्लेस अर्थ एग्जिस्ट। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस, दे आर लिंक्ड टू ईच अदर and they need and biosphere for the survival. Now biosphere is made of biotic or living environment and abiotic or non-living environment. We have biotic environment that is non-living and abiotic environment that is non-living, or biotic that is living. Now when both of these interact with each other, ठीक है, they create a balanced life supporting environment which is called ecosystem. Now the scientists have classified the organism in biosphere into plant kingdom and animal kingdom. और जो human beings है वो किसके पार्ट है? आपके animal kingdom के पार्ट है। There is a constant interaction between 3 domains of the earth: lithosphere, hydrosphere and atmosphere. Now I will give you an example. Like the water vapor, a part of hydrosphere, overlap and mix with lower part of atmosphere. और water penetrates करता है ग्राउंड में थ्रू द वेरी स्मॉल होल्स, राइट। और ये कांस्टेंट इंट्रैक्शन चलता रहता है प्लांट और एनिमल के अंदर। देखो एनिमल्स ने प्लांट को खाया, ठीक है, और ऐसे क्या होता है कि इंट्रैक्शन चलता रहता है। Now, water and air present in the soil help the plant to grow, and the organism like earthworm
वो क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, ठीक है। एंड द माइक्रोब्स इन द लेग्यूम्स रूट, वो चेंज करते हैं किसको, नाइट्रोजन ऑफ द एयर टू कंज्यूमेबल फॉर्म। ग्रीन लीव्स चेंज कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद वाटर इनटू ग्लूकोज एंड शुगर, ठीक है। तो क्या होता है, जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसको चेंज करती है, वाटर को, किसमें, ग्लूकोज और शुगर में। एंड डस्ट इन एयर राइजेस थ्रू द ग्राउंड, इट एक्ट्स एज न्यूक्लियर around which water vapors condense. This helps in making clouds and rainfall possible. The interaction of three domains of earth also affect each other. For example, cutting of forest for wood, clearing land for agriculture leads to fast removal of fertile soil. देखो, आप पेड़ को काट लो तो जो fertile soil है वो क्या हो रही है, रिमूव हो रही है। Natural calamities like earthquake, tsunami may change the earth's surface and submerge land under water. Climate भी एक इंट्रैक्शन करता है लैंड, एयर और वाटर के बीच में। Now discharge of waste material from household and factories into lakes and rivers make the water unfit for consumption. देखो, फैक्ट्री से वेस्ट जा रहा है, घर से वेस्ट जा रहा है, लोग रिवर में ही ऐसे डाल दे रहे हैं, तो वो जो वाटर है वो अनफिट हो जाता है फॉर ड्रिंकिंग, फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। It also damages main forms of like emission from industry, thermal power station, automobile vehicles, burning fuel। ये क्या करता है, पॉल्यूट करता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस जो हार्मफुल होती है लाइफ के लिए, वो क्या करते हैं, उसको पॉल्यूट कर देती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर मेकिंग फूड बाय ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट, बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे क्या होता है, ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। भाई ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है तो ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होगा। इस फिनोमिना को क्या बोला जाता है, ग्लोबल वार्मिंग। तो क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्रीन हाउस गैसेस जैसे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई, वाटर वेपर, मीथेन, ये करते हैं हिट को एब्जॉर्ब करते हैं एंड गिव्स आउट बाय the interaction between three domains of earth can be best be described by the balance they maintain. To maintain a delicate balance, अगर आपको delicate balance को maintain करना है तो आपको क्या करना है, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, देयर इज अर्जेंट नीड कि आप रिसोर्सेज का यूजर्स को लिमिट करें, ठीक है। जैसे फॉरेस्ट हो गया आपका, और आपका कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया। ओनली देन वी कैन मेंटेन सर्टेन साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड दिस हैज़ टू बी डन फॉर सर्वाइव। देखो, अगर आपको सर्वाइवल चाहिए ह्यूमन बीइंग का, तो आपको इनका यूज कम करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये हमारे लैंड को भी पॉल्यूट करते हैं। नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, यू विल रीड दिस टर्म्स टू नो